Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are revising the chapters and we are revising it thoroughly. पूरा चैप्टर मैं आपको फिर से समझा रही हूँ. We have already completed chapter 7 and 8 and I have explained you chapter 9 also, which is days to celebrate. Children, this chapter is about festivals that you know, because you must have been watching the videos, and those who have not seen it, please watch the videos which we have recently completed. I discussed with you various festivals that are celebrated by Indians. I'm not saying that festivals that are celebrated in India. I use the word festivals that are celebrated by Indians because there are certain people of India who reside in other countries. They live in other countries and there they celebrate those festivals. जो भी जिस कंट्री में है, जो भी इंडियंस दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ भी वो सारे फेस्टिवल्स अपने सेलिब्रेट करते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, अपने कम्युनिटी के हिसाब से. They celebrate festivals, and we discussed about different regional festivals, different festivals of states, and also national festivals. Some festivals are mentioned in your textbook. There are certain festivals which I explained you from my side, like there is a festival that is Pongal, which is harvest festival, and I explained to you many other harvest festivals along with Pongal. Then there are certain other religious festivals like Ganesh Chaturthi and many other which I explained from my side, like Dev Deepavali, Chhat Puja. These all I explained to you in this chapter. Now it's time for exercise. Children, exercises are given at the end of every chapter that you know, that you learn also. But what I want to give is from the content of the chapter. जो चैप्टर के बीच में है, जो चैप्टर के कंटेंट से रिलेटेड है, वो वाली एक्सरसाइजेज मैं आज आपको कराऊंगी. It can be in the form of fill in the blanks or one word answer or choose the correct option. In whatever way it is possible, I will do with you. तो लेट्स स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स. हम फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं बिकॉज सबसे बेस्ट तरीका होता है वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स टू रिवाइज अ चैप्टर. किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका होता है फिल इन द ब्लैंक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम. Number 1. India is also known as a dash. Sorry, एक वर्ड इसमें मिस हो गया. As a, okay, ये inverted commas में बताना है. India is also known as land of blank. इंडिया को और किस नाम से हम जानते हैं? Now your answer should relate to the chapter. इंडिया को भले और भी किसी नाम से जाना जाता हो, but we are relating it with the chapter which is about festivals. So हम क्या बोलेंगे? India is also known as land of many festivals. Land of many while explaining the chapter, I explained to you also that our country is such a great and blessed country that we get chance to celebrate so many festivals. इसीलिए हम इसको लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल्स बोलते हैं, क्योंकि
बाकी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं बहुत लिमिटेड फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन हमारा ही एक कंट्री ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर वीक अगर नहीं तो हर महीने में तो फेस्टिवल्स होते ही होते हैं। कुछ फेस्टिवल्स बहुत कॉमन फेस्टिवल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता है, बट दे आर सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इन सम कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री. So, and since we have 28 states, there are certain festivals which are celebrated by that particular state. तो अगर हम 28 states के अगर अलग अलग festivals देखें तो 28 festivals तो हमारे ऐसे ही हो जाएंगे अगर हम state के सिर्फ festivals देखेंगे तो. But we have many festivals, uncountable festivals. Now, number 2, dash is an event dash is an event which is usually celebrated by a community. A blank is an event which is usually celebrated by a community. तो क्या चीज है जो यूजुअली एक कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? It is festival. Yes, a festival is an event, is an occasion which is usually celebrated by a community. It can be as a local or on a national event. Then number 3, we have dash national festivals. How many national festivals do we have? We have 3 national festivals. Gandhi Jayanti, Independence Day and Republic Day. These are the 3 national festivals that we celebrate. Number 3, we celebrate dash on 25th Which festival do we celebrate on 25th of December? 25th December को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? Yes, it's your Christmas. CHRISTMAS. We celebrate Christmas on 25th of December, जो recently आने वाला है. And number 4 था. Number 5, we celebrate dash on 14th January. 14th जनवरी को हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? 14 जनवरी को, 14 जनवरी को हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? मकर संक्रांति. यस, मकर संक्रांति. You can also write Pongal, but Pongal South India में मनाया जाता है, especially in Tamil Nadu. That's why we will write Makar Sankranti, because most of the people they celebrate Makar Sankranti, which is also called Khichdi in Uttar Pradesh. So it is celebrated on 14th of January. Okay. Now I'm going to rub this.
Next is number 6. Dash is celebrated on 26th January every year. Which festival is celebrated on 26th January every year? हर साल 26 जनवरी को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? It is Republic Day. Yes, it is a Republic Day. REPUBLIC. Number 7. Gandhi Jayanti is celebrated on dash every year. गांधी जयंती हर साल कब मनाया जाता है? When it is celebrated? Gandhi Jayanti, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, is celebrated on 2nd October. 2nd October every year. हर साल 2nd October को गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज country. Our country became independent on dash. Our country became independent on which date? कब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था? कब हमारा देश फ्री हुआ था? कौन सी डेट थी वो? डेट जब हम ये बात करते हैं ना कि आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, और देन यू हैव टू मेंशन ईयर आल्सो. कीप दिस इन माइंड. व्हेन वी से दैट वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, तब हम एक पर्टिकुलर डे बोलेंगे, डेट बोलेंगे. बट व्हेन वी से आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, देन वी हैव टू राइट कंप्लीट आंसर लाइक 15th August 1947. This you have to mention. When we say our country became independent on, then you have to tell date also along with year. But when we say we celebrate Independence Day, then we write only 15th August. But when we are talking about when India became independent, then we have to mention the year also, कि कौन से साल में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था. तो आपको 15th अगस्त में लिखना है, साथ में 1947 भी लिखना है. ठीक है. Dash is one of the most important festival of Muslims. Dash is one of the most important festival of Muslims. कौन सा फेस्टिवल है जो मुस्लिम्स लोग का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है? इट इज ईद उल फित्र. यस, EID, ईद उल FITR, ईद उल फित्र. ईद उल फित्र इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं सो दैट वी कैन राइट अदर
नेक्स्ट फेस्टिवल हम देख रहे हैं dash is the biggest harvest festival of Tamil Nadu. Which is the biggest harvest festival of Tamil Nadu? Pongal, yes. Pongal is the biggest harvest festival of Tamil Nadu. मैंने आपको एक और हार्वेस्ट फेस्टिवल बताया था असम का, तो जरूरी नहीं है कि जो बुक में मेंशन है मैं वही बताऊं, बिकॉज वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड यू दैट ऑल्सो आई कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. So dash is the harvest festival of Assam. असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? बिहू. यस, बिहू. मैंने आपको बताया था कि बिहू जो होता है वो 3 टाइम्स का होता है, 3 टाइम्स सेलिब्रेट होता है. इट इज सेलिब्रेटेड थ्राइस अ ईयर. 3 बार सेलिब्रेट होता है. रोगाली, भोगाली और कोंगल. ये 3 तरह का जो है बिहू सेलिब्रेट होता है. और ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल है. इट इज ऑल्सो नेम ऑफ अ डांस. जो बिहू डांस होता है वो भी हार्वेस्ट के टाइम पे ही किया जाता है, इसीलिए उस डांस का नाम भी बिहू है. इट इज रिलेटेड टू द फेस्टिवल बिहू. नेक्स्ट इज 12. Holi is also called dash. ये तो इजी है. Holi is also called festival of colors. Yes. Festival of colors. Next. Dash is also called festival of lights. Which festival is also called festival of lights? It is Diwali. Question I will frame for you, which I explained to you at the beginning of the video or related to this chapter, and you will come to know because it is not mentioned in the chapter, but I explained to you elaborately. बहुत आपको डिटेल में मैंने explain किया था. I would like to have a question on that. Which dash festival, sorry, is called आपको समझ में आ गया. डैश फेस्टिवल इज कॉल्ड दिवाली ऑफ गॉड्स. डी कैपिटल होगा सभी. दिवाली ऑफ गॉड्स. इट इज देव दीपावली. यस, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये, क्योंकि उस समय वो फेस्टिवल बनाया जा रहा था. देव दीपावली. देव दीपावली इज ऑल्सो कॉल्ड दिवाली ऑफ गॉड. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ योर सिटी वाराणसी. वाराणसी का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. एंड जब मैंने वीडियो शुरू किया था उस समय हमने रिसेंटली उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था. सो देव दीपावली इज कॉल्ड देव दीपावली फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल दीपावली ऑफ गॉड्स. नेक्स्ट इसको यूज कर देते हैं.
Next is dash is what dash is also known as Guru Nanak Jayanti. Which festival is also called Guru Nanak Jayanti? किस फेस्टिवल को गुरु नानक जयंती के नाम से भी जानते हैं? And it is Guru Purab. Gurupurab. Guru Purab is also known as Guru Nanak Jayanti. And number 6. Dash was the first Sikh Guru. Who was the first Sikh Guru who started Sikh religion? It is Guru Nanak Ji. Guru N-A-N-A-K, Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji was the first Sikh Guru. Guru Nanak Dev Ji was the first Sikh Guru. Then 17, Guru Purab is C-E-L-E-B-R-A-B, celebrated in the month of blank. Guru Purab is celebrated in the month of, now here you have to write the name of Hindi month, क्योंकि गुरु पर्व जो है वो हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग मनाया जाता है. इट इज़ नॉट सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कैलेंडर दैट वी फॉलो. हम जो जनवरी फरवरी जो फॉलो करते हैं कैलेंडर, उसके हिसाब से नहीं मनाया जाता. इट इज़ फॉलोड एज पर द शक संवत कैलेंडर, और वी कैन कॉल इट हिंदू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर. सो गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक. K-A-R-T-I-K, कार्तिक के मंथ में इसको मनाया जाता है. ठीक है, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन. देन नेक्स्ट इज dash is a special meal offered to all at Gurudwaras. Dash is a special meal offered to all at Gurudwaras. Which is the special meal that is offered to all in Gurudwara? जितने भी गुरुद्वारा है वहाँ पे जो स्पेशल खाना खिलाया जाता है, सबको खिलाया जाता है. ऑफर्ड टू ऑल मतलब सबको खिलाया जाता है. मील मतलब होता है खाना. उसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट? इट इज कॉल्ड लंगर. क्या बोलते हैं उसको? लंगर. LANGAR. लंगर इज अ स्पेशल मील offered to all in Gurudwaras. ये एक गुरुद्वारा में नहीं होता, many Gurudwaras they offer meal to all. सबको खाना खिलाते हैं and it is called लंगर. उसको लंगर कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट सी, पूरा चैप्टर हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं. होल चैप्टर कैन बी रिवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. इसको हम वन वर्ड में भी कर सकते हैं, इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी कर सकते हैं. अभी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में करा रही हूं. आई विल गिव यू इट इन द फॉर्म ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो. नेक्स्ट is 19th.
क्रिसमस इज द, अभी हमने 25 दिसंबर तो हमने किया था. नाउ वी विल डू क्रिसमस इज द बर्थ, ANNIVERSARY, बर्थ एनिवर्सरी. बर्थ एनिवर्सरी बोलते हैं. तो क्रिसमस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्लैंक. किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है? क्रिसमस के दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? हम किसका बर्थडे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं? इट इज जीसस क्राइस्ट. Next, then next is Dashera is also called Black. दशहरा को हम और किस नाम से जानते हैं? दशहरा जो फेस्टिवल है, जो 10 डेज वाला, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड विजयदशमी. दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. और इसको दशेन, नेपाल में तो दशेन बोलते हैं. दुर्गा पूजा भी बोला जाता है. देन नेक्स्ट इज ईद उल फित्र. Eid al-Fitr marks the end of the holy month of Blend. Eid al-Fitr marks the end of the holy month of ब्लैंक. जब ईद मनाई जाती है तो वो कब मनाई जाती है, मतलब कौन सा पवित्र महीना खत्म होता है, तब होली मनाई जाती है. हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ दैट एंड्स आफ्टर विच ईद इज सेलिब्रेटेड. तो उस मंथ का नाम आपको बताना है. एंड द नेम ऑफ द मंथ इज रमजान, जिसे हम हिंदी में रमजान बोलते हैं. इट इज कॉल्ड रमजान या रमजान. देन ये हमने 21 आज फिल इन द ब्लैंक्स किए, विच इज फ्रॉम द चैप्टर. ये चैप्टर को ही हमने रिवाइज किया इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. देर आर मेनी मोर क्वेश्चंस, मेनी मोर ब्लैंक्स इन फैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स दैट वी हैव टू डू to revise the chapter. But for today we will stop here, and rest of the blanks we will do in the नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इतना ही. जितना भी मैंने कराया है प्लीज़ रिवाइज दैट, गो थ्रू दैट, क्योंकि यही सारा चीज़ जो है किसी भी फॉर्म में आ सकता है इन एग्ज़ाम. और इट कैन बी आस्क्ड. सिर्फ हर चीज़ एग्ज़ाम के पर्पज से नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है. तो आप अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर ही कवर्ड हो जाएगा इसमें. मतलब योर होल चैप्टर विल बी रिवाइज थ्रू इट. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल रिवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. फिल इन द ब्लैंक्स ही करेंगे और कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी करेंगे, ठीक है. पर वो सब करेंगे नेक्स्ट में. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.